خواتین و حضرات، آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام براندلو، ناصر، کمال، رضا، اصغر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر میں وہ ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اگر آپ مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں تو میں زندہ ہوں۔ تو پھر زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ آپا کہاں ہے ڈاکٹر؟ ابھی تک وہیں ہیں، بالکل اسی طرح، وہی حالت ہے، بے حس و حرکت، خاموش۔ کیا ہو گیا ہے آپا کو ڈاکٹر؟ وہ روتی کیوں نہیں؟ کیا وہ اکیلی ہیں اس کے پاس؟ نہیں، آیا ہے ان کے ساتھ، یہ اسی کے رونے کی آواز ہے۔ آیا کو روتے دیکھ کر بھی ان کو رونا نہیں آیا۔ وہ آیا، تم کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں بانو بی بی، بس ٹک ٹکی باندھے اس کے چہرے کو تکی جا رہی ہے۔ میرے خدا، اس کے چہرے کو تک رہی ہیں اور ہولے ہولے کچھ کہہ رہی ہیں۔ کاش ہم کچھ کر سکتے۔ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی ہیں۔ اوہ اللہ، ان کی باتیں سن کر ڈر لگتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ بس ایک ہی بات کہہ جا رہی ہیں، وہ چلا گیا، وہ واپس آئے گا، وہ واپس آئے گا۔ صدمے کی شدت زیادہ ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے، مگر وہ یہ کچھ اس یقین سے کہہ رہی ہیں جیسے اس کا غم ہی ایسا ہے، ورنہ جا کر کون واپس آتا ہے۔ وہ چلا گیا، انہوں نے کہا اور میری طرف دیکھا، پھر بولی وہ واپس آئے گا، پھر مجھے گھورتے ہوئے کہا وہ ضرور واپس آئے گا۔ میری بہن، ہم کیا کریں ڈاکٹر؟ بانو، وقت ہر ایک کو صبر دیتا ہے۔ اور بانو بی بھی وہ کہتی تھی وہ شخص جو بستر پر مردہ پڑا ہے میرا بیٹا نہیں ہے۔ کیا؟ بالکل یہی بات آپا نے رات بھی کہی تھی۔ اور اب وہ چاہتی ہیں کہ اس کا کمرہ جلدی ٹھیک کر دیا جائے۔ انہوں نے اس لیے مجھے بھیجا ہے کہ اسے فوراً وہاں سے اٹھا لیا جائے دفن کے لیے؟ مگر ہاں وہ چاہتی ہیں کہ اس کو کفنایا نہ جائے اور وہ جس حالت میں ہے اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ میرے اللہ، وہ پاگل ہو جائیں گی ڈاکٹر، میری آپا، میری بہن۔ کلثوم چاہتی ہیں اس کو کفنایا نہ جائے، تعجب کی بات ہے۔ دنیا میں کون سی ایسی ماں ہوگی جو یہ چاہے کہ اس کا بیٹا صرف موت کی برہنگی میں ملبوس قبر میں اتار دیا جائے؟ کیسا عجیب خیال ہے۔ ان کا ہر خیال ایسا ہی عجیب ہوتا ہے ڈاکٹر، کبھی کبھی تو ان کے خیالوں سے خوف آنے لگتا ہے۔ ان سے کوئی بات کرے تو چپ چاپ سنتی رہتی ہیں، کھوئی کھوئی سی، گم گم سی، جیسے وہ کہیں اور ہیں، اور پھر اچانک وہ اپنے آپ میں لوٹ آتی ہیں، اور جب بولتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جو کچھ انہوں نے کہا وہی دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ان کے الفاظ سننے والے پر جادو کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ طلسم ٹوٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ ان کی باتوں سے واقعی خوف آتا ہے ڈاکٹر، اور ان کی آنکھیں، وہ آنکھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنا ذہنی یہ توازن۔ نہ کہیے، یہ نہ کہیے ڈاکٹر صاحب، یہ نہ بھولیے کہ وہ ایک ماں ہے، اور ماں بھی وہ جس نے اپنا سب کچھ اپنے اکلوتے بیٹے پر قربان کر دیا ہے۔ کیسے کیسے غم تھے ان کی زندگی میں، جوان بیٹے کی جدائی، اور پھر 7 برس کم نہیں ہوتے۔ کون جانتا تھا کہ بد نصیب ماں جو 7 برس سے ایک ایک دن اور ایک ایک رات بیٹے کے انتظار میں گزار رہی تھی، اس طرح صرف 2 دن کے اندر اندر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھے گی۔
कितने मुख्तसर अरसे के लिए वो वापस आया था अपनी माँ के पास। कितना शरीर और खेंदरा जवान था वो जब इस बस्ती से शहर में आला तालीम के लिए गया था। और डॉक्टर, फिर उसी शहर ने उसे। मुझे मालूम है बानू। उसने तुमसे कोई बात की थी डॉक्टर? हाँ, की थी। इसलिए तो मैं अब तक ठहरा हुआ हूँ कि कुलसुम से इस सिलसिले में बात कर लूँ। डॉक्टर, क्या उसने उस लड़की के मुतालिक तुमसे कुछ कहा था? नहीं, उसने ख्वाहिश जाहिर की थी। उसे मालूम था वो मर रहा है। चुनांचे उसने कहा था कि उसके मरने की इत्तला बराह रास्त हुमैरा को न दी जाए। हुमैरा? ये उस लड़की का नाम। मेरे खुदा, ये सब ना हुआ होता। पिछले 7 बरसों में कैसी कैसी अजियतें दी उसने अपनी माँ को। सिर्फ उसके लिए दुखियारी माँ रात दिन उसका इंतजार करती रही, और वो उस लड़की की मोहब्बत में सब कुछ भूल गया, खबर तक न ली इधर की। जब लौटा तो सिर्फ 2 दिन जिंदा रहकर मर जाने के लिए। जरूर आएगा। खुदाया, सुन रहे हो डॉक्टर? वो फिर अपने आप से बातों में मसरूफ है। बोलने दो, शायद इसी तरह गम का गुबार हल्का हो। जिंदगी का असासा इकलौता बेटा मर जाए तो उसका ख्याल जरा। उसका ख्याल? तौबा, तुम नहीं जानते डॉक्टर, आपा की सोच बहुत भयानक है। वो जिंदगी को इस तरह देखती ही नहीं जिस तरह हम तुम देखते हैं। बानू, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम कुछ अरसे के लिए कुलसुम को अपने यहाँ ले जाओ? किसी की सुनती कब है? मुझे तो यूं महसूस होता है उनकी दुनिया में मुकम्मल सुकूत है, और जब उनके ख्यालात और जज्बात का तूफान उठता है तो यूं लगता है जैसे उनकी रूह उनके जिस्म से परवाज करके किसी अनजाने सिमत जा रही है। जब उनका बेटा जिंदा था तो यकीनन उनका ध्यान उधर था। वो चला गया, कुलसुम आ रही है। वापस आएगा, जरूर आएगा मेरा बेटा। कुलसुम। आपा, तुम लोग अभी तक यहीं हो और सब कहाँ गए? मैंने बहुत से लोगों के रोने की आवाज सुनी थी। सब साथ छोड़ गए। और आया कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि जल्दी करे। कुलसुम, जरा सब्र से काम लो। उसकी मर्जी में किसी को दखल नहीं। जो कुछ हुआ यही उसकी रजा थी। यही उसकी मर्जी थी। मैं जानती हूँ डॉक्टर, मुझे इसका मुकाबला करना है और उसे बर्दाश्त करना है। खुदा की रजा पर कायम रहना है। सबको यही करना चाहिए, यहाँ तक कि आखिरी घड़ी आ जाए, तुम्हारा सांस रुक जाए, तुम्हारी हिम्मत साथ छोड़ दे और तुम्हारे होठों पर ये दुआ आ जाए, क्या है मेरे रब, अब मुझ में और ताब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता, मुझसे ये जिंदगी वापस ले ले। लेकिन वो इस दुआ को रद्द कर देता है। उसकी मर्जी यही है कि जिंदा रहो, बर्दाश्त करो। वो हमें जिंदा रखना चाहता है, हमसे हमारी जिंदगी वापस लेना नहीं चाहता। लेकिन कुलसुम, हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची जिंदगी वही है जो मौत के बाद है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, तो फिर ये तुम क्यों कहते हो कि मेरा बेटा मर गया? तुम्हें कहना चाहिए कि वो इस जिंदगी से अबदी जिंदगी की तरफ चला गया। खुदा अपनी मखलूक के साथ नहीं मरता, इंसान मर जाते हैं, वो जिंदा रहता है। और जब तक खुदा जिंदा, उसकी मखलूक जिंदा रहेगी। तुम मुझसे क्यों नहीं कहते कि मेरा बेटा जो मेरी तखलीक है जिंदा है? जब तक मैं जिंदा हूँ वो भी जिंदा रहेगा। हाँ, वो जिंदा रहेगा कुलसुम, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे ख्यालों में। खुदा के लिए डॉक्टर, ऐसा फासला निकालो मुझे। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तो फिर मुझे क्या कहना? तुम्हें कहना चाहिए कि खुदा मेरी खातिर मेरे बेटे को जिंदा रखना चाहता है। उस जिंदगी की बदौलत जो मैंने उसी बख्शती रहूंगी, वो कभी फना नहीं होगा। वो मेरी जिंदगी की पोशाक में मलबूस इस जमीन में मौजूद होगा। उससे ये जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। खुदा हमें जिंदगी देता है और वही जिंदगी वापस ये झूठ है। खुदा कभी जिंदगी वापस नहीं लेता। मैं सिर्फ उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया में उसके लिए थी। और ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें मालूम है कि साथ के कमरे में एक बेजान जिस्म पड़ा है, एक लाश जो न सुन सकती है और न देख सकती है। और हर आदमी की तरह तुम चाहते हो कि उसको नहला कर, खुशबू में बसाकर, सफेद चादर में लपेट कर कब्र के अंधेरे में उतार दिया जाए। आपा, मेरी आपा, क्या है, मरने वाले के साथ ऐसा नहीं किया जाता। सोचो तो आपा। तो फिर जाओ, जाओ और जल्दी करो। मैं चाहती हूँ कि वो लाश कमरे से फौरन हटा ली जाए। सच नबी की लाश। मैं अपने बेटे के कमरे को उसी हालत में रखना चाहती हूँ
ऐसा कि वो छोड़ कर गया था। कुलसुम, बार बार ये न कहो। तुम नहीं जानती तुम ये क्या कह रही हो। जानती हूँ डॉक्टर, तुम भी जानते हो। मेरा बेटा जो चला गया था अभी तक वापस नहीं आया है। कुलसुम। डॉक्टर, यूं हैरत से बानो की तरफ ना देखो। उसके अपने बच्चे भी, जिनको उसने पिछले साल तालीम के लिए शहर भेजा था, अब कभी इस बस्ती को न लौटेंगे। रोना मेरी बहन, रोने से कुछ न होगा। मैं भी उसके जाने पर रोई थी और फिर मैं रोती ही रही। आंसू न बहा मेरी बहन। ये आंसू तो जरा देख, अपने चेहरे को देख। 1 साल में ये क्या हुआ है तुझे? आंखों में गम की झलक। तेरे बच्चों को गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है ना? कैसा लगता है तुझे? बिल्कुल अजीब सा, ख्वाब सा। अब तुम समझ सकती हो बानो, सब कुछ ख्वाब है। वो वक्त जो गुजर गया और वो जो क्या आने वाला है, आज के ख्वाब, कल के ख्वाब, सब ख्वाब है बानो। हाँ, सब ख्वाब, यादें। तो बस, जब तक यादें जिंदा हैं हम हर ख्वाब को हकीकत बना सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा जिंदा है। मैं उस बेजान जिस्म का जिक्र नहीं कर रही हूँ जो साथ के कमरे में बिस्तर पर पड़ा है। लेकिन वो जिस्म तुम्हारे बेटे ही का है कुलसुम। ये भी एक ख्वाब ही होता। तुम नहीं समझ सकते। उस राज को पाने के लिए बेपनाह अजियतें उठानी पड़ती हैं। ये राज जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और फिर हकीकत में तमाम गमों पर भारी, जो मेरे गम से भी अजीम तर है, लेकिन उसे पाने के लिए 7 साल तक तन्हाई में किसी का इंतजार करना होता है। तुम नहीं समझ सकते डॉक्टर, मगर मैं जो इस राज को पा चुकी हूँ सब कुछ समझती हूँ। कभी कभी तो जब मैं बोलती हूँ तो महसूस होता है जैसे कोई और बोल रहा है, और मैं खुद अपनी आवाज पर मुड़ मुड़ कर देखने लगती हूँ। तुम बहुत थक गई हो कुलसुम, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आराम नहीं कर सकती, मुझे उसके लिए जिंदा रहना है। मैं कैसे बताऊं डॉक्टर, मेरा बेटा तुम्हारे लिए मर गया लेकिन वो मेरे लिए जिंदा है। जिस रोज वो अजनबी आया जिसने मेरे बेटे की एक भी अलामत न थी, मैं बेहद रोई, इतना रोई कि मेरे आंसू खुश्क हो गए। यह हकीकत है कि 7 साल के बाद घर वापस आने पर वो बहुत बदला था, लेकिन वक्त के साथ हर एक में तब्दीली आ जाती है। तब्दीली? तुम्हारे ख्याल में ये लफ्ज बाइस से तस्कीन हो सकता है? यकीन जानो, मैं अपने बेटे को पहचान ना सकी। मैं उसके चेहरे को तकती रही, लेकिन उस चेहरे में अपने बेटे की एक झलक भी न पा सकी। वो मुस्कुराहट जो उसके लरसते हुए होंठों पर झूला करती थी, जैसे शाखों पर फूल झूलते हैं, उसकी आंखों की चमक, उसके सुनहरी बालों के छोटे छोटे हल्के, कुछ भी ना था डॉक्टर। सर से पांव तक एक अजनबी। हर माँ अपने बेटे को पहचानती है। औलाद माँ की तख्लीक है डॉक्टर, मगर वक्त माओं पर कितना जुल्म करता है। वो हमारे बेटों को हमसे छीन लेता है और फिर कुछ अरसे के बाद जब वो हमें मिलते हैं तो बिल्कुल अजनबी होते हैं। दुनिया में यही कुछ होता है। अब सब भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारा बेटा मर गया। तुम्हारा बेटा जो अब से चंद लम्हों पहले तक इसी कायनात में जिंदगी गुजार रहा था, अब जिंदगी की हरारत से महरूम है। वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, एक जिंदगी जिसमें मेरा हिस्सा ना था। उसने अपनी
जिंदगी में मुझे कुछ ना दिया। ये क्यों होता है? सच क्या है और झूठ क्या है? अगर मौत पर आकर तो फिर हम रोते क्यों हैं? किस चीज का मातम करते हैं? मौत के अलावा वो कोई शय और है जिसके लिए हम रोते हैं? हम उस जिंदगी के लिए रोते हैं जिसे मौत ने हमसे छीन लिया। नहीं, हम खुद अपने लिए रोते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जो मर गया है अब हमें जिंदगी न दे सकेगा। मेरे बेटे, वो सब लोग रोएंगे जो तुझसे जिंदगी हासिल न कर सकेंगे। वो भी वो लड़की हो मेरा, जिसने 7 बरस के लिए तुझे मुझसे छीन लिया था। मगर कौन जाने मैं उसे हुमैरा के लिए भी जिंदा रखने में कामयाब हो जाऊं। मैं उसका इंतजार करूंगी और वो मुझसे हासिल की हुई जिंदगी उसे बख्शता रहेगा, उसको, हुमैरा को। कुलसुम, मैं ये कहने के लिए रुका था, मरने से जरा पहले उसने मुझसे कहा था कि उसके मरने की इतला हुमैरा को अचानक न पहुंचाई जाए। पहले हुमैरा की बहन को खत लिखें। मैं उसको जिंदगी बख्शूंगी और वो हमेशा मोहब्बत करता रहेगा। ये हुमैरा का इम्तिहान है। अगर वो ये जान ले कि वो उसे अपने दिल में जिंदा रख सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि वो मेरे लिए जिंदा है, अगर वो हुमैरा को, हाँ, हुमैरा को अब पता चलेगा कि किसी को जिंदगी किस तरह दी जाती है, अब उसको मालूम होगा कि किस में ज्यादा हिम्मत और सकत है, मुझमें या उसमें। तुम ये क्या कह रही हो आपा? मैं मोहब्बत करने और जिंदगी बख्शे को एक ही धागे में पिरो रही हूँ। 7 साल तो एक वक्फा था। मैं उस अबदी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। हिम्मत का इम्तिहान। बीबी, ये क्या है? अभी अभी ये खत। खत? किसका खत? लाओ, मुझे दो। ये उसी का खत है, हुमैरा का। जब से वो आया था उसे इस खत का इंतजार था। इंतजार करते करते उसने हुमैरा को खत लिखना शुरू किया, मगर वो खत कहाँ है? शायद उसके तकिए के नीचे हो। कुलसुम, मेरे ख्याल में उसका खत बगैर पढ़े फाड़ दो और हमें हुमैरा की बहन को इत्तला कर देनी चाहिए। नहीं, पहले ये खत खोल कर देखें। हाँ, देखें उसने क्या लिखा है। कौन जानता था कि जब ये खत पहुंचेगा तो वो यहाँ न। यूं ना कहो बानो, वो यहाँ है, वो यही है। क्या लिखा है? वो आ रही है, वो आएगी। ओ, अब तो यही मुनासिब है कि हम फौरन उसे उसकी मौत की खबर दे दें। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। लिखा है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकती। मोहब्बत करना आसान है, जिंदगी बख्शना मुश्किल। मगर उसके ये अल्फाज, ओह, मैं पहचान गई। वो ये कर सकती है डॉक्टर। सुनो, तुम्हारा ख्याल गलत है। इस मौके पर हमें उसे ये नहीं बताना चाहिए कि वो मर गया है। यही तो उसने कहा था, हम पहले उसकी बहन को लिखेंगे। मगर हमें बहुत जल्दी इत्तला भेज देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो। नहीं, उसे जिंदा रहने दो। हुमैरा भी उसे जिंदगी बख्शेगी, या कम से कम सीखेगी कि जिंदगी कैसे बख्शी जाती है। कुलसुम, ये कैसे? बहरहाल हमें खबर उन तक पहुंचाना। ठहरो, जरा मैं वो अधूरा खत ले आऊं जो वो उसे लिख रहा था। आपा, तुम क्या करना चाहती हो? मैं हुमैरा को तस्कीन पहुंचाना चाहती हूँ। मैं उसका खत हुमैरा को भेज दूंगी। वो उसे एक दफा खो चुकी है। मोहब्बत भरे अल्फाज से वो उसे दोबारा पालेगी। तो क्या तुम वो खत उसे भेजना चाहती हो जो मौत से पहले वो लिख रहा था?
वो नामुकम्मल खत? मैं उसे मुकम्मल कर लूंगी। वैसी तहरीर लिखना मुश्किल नहीं। खुदाया, आपा तुम क्या कर रही हो? हुमैरा को उसकी जरूरत है बानो। उसे मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए और मैं उसे उसके लिए जिंदा रखूंगी। मगर कुलसुम, साथ में तुम्हें एक खत उसकी बहन को भी लिखना चाहिए जिसमें तुम उसकी मौत। हाँ, सबको ये मालूम होना चाहिए कि वो चला गया है, मगर वापस आएगा। आपा खुदा ये न कीजिए। मुझे तनहा छोड़ दो। डॉक्टर, तुम लाश को दफन करने के इंतजाम करो। मेरे बेटे के कमरे से अजनबी को हटा दो। वो वापस आएगा डॉक्टर, वो जरूर आएगा। वो गुलदान वहां रख दो आया। हाँ, उस कोने पर। और देखो, उस टोकरी में सिर्फ सफेद फूल होने चाहिए, समझी? और अब जाओ, जल्दी जल्दी वो सब गमले बरामदे में एक कतार में लगा दो। वो सब जो मैंने बताए थे, याद है ना? जी हाँ, याद है कुलसुम बीबी। कैसी भीनी खुशबू है इन फूलों में। आपा, अरे तुम बानो, अभी तक तुम गई नहीं। कल तो तुम्हारे बच्चे लौटने वाले हैं शहर से। तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए था। बच्चों के आने का एहतमाम करना होगा। हाँ मैं जा रही हूँ, मगर बहुत दिन रही तुम मेरे साथ, और फिर यूं भी मुझे तो तन्हा रहने की आदत है। तुम जाओ बानो। आपा, आया आया, मैंने कहा था कि खिड़कियों के ये पर्दे बदल दो। तुम्हें मालूम है उसे सब्ज रंग कितना अच्छा लगता है। वो नए सब्ज रंग के पर्दे अभी तक नहीं लटकाए तुमने। जी बीबी, वही तो कर रही हूँ। हाँ, जरा जल्दी करो आया। और वो मेज पोश बदल दिए तुमने उसके कमरे के? जी हाँ बीबी। तो जाओ, जल्दी जल्दी पर्दे भी बदल दो आया। आपा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने सोचा भी इसका नतीजा क्या होगा? इंसान गलतियां करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? तुमने ये भी सोचा, और अब तुमने अपने वाहिमे में उस लड़की को भी शरीक कर लिया। मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो उसे छोड़ कर आ गया था और चाहता था कि वो ना आए, लेकिन वो जिद्दी लड़की आने पर मुसिर है, तो आने वाले को कौन रोक सकता है? रोक सकती थी आपा। तुम्हें चाहिए था कि उमेरा की बहन को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह कर देती। मैंने चाहा, लेकिन मैं ऐसा न कर सकी बानो। पिछले 10 रोज में मैंने कई बार इरादा भी किया, मगर बावजूद कोशिश के मैं ऐसा न कर सकी। मगर क्यों? तुम्हें मालूम नहीं बानो, हुमैरा का एक खत और आया था उसके नाम। ओह आपा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है आपा। डर? मुझसे? एक माँ से? तुम भी तो माँ हो। तुम इस गमज़दा माँ से डरती हो जिसका कसूर सिर्फ ये है कि वो अपने बेटे से, जिसका सरमाया जिंदगी था, मोहब्बत करती। अब अगर मैं उसे आवाज दूं तो भी तुम मुझसे डरोगी। डरोगी ना? आपा, तुम डरती हो कि कहीं मेरी आवाज सुनकर वो अचानक अपने कमरे से नमूदार ना हो जाए। मैं तुम्हें कैसे बताऊं बानो, वो सचमुच जिंदा है, मैं पागल नहीं हूँ। मगर आपा, जो कुछ तुम कर रही हो और करना चाहती हो वो पागलपन है। मैं चाहती हूँ जिसने मुझे मेरे बेटे से 7 साल महरूम रखा, अब वो यहाँ आकर मेरे साथ रहे। तन्हाई, मुझे उसकी मौजूदगी से सुकून मिलेगा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ बानो, और थक गई हूँ। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि सिर्फ अपनी यादों के सहारे उन नसीहतों का मुकाबला कर सकूं। अब मेरी आखिरी पनाह है वो जो आ रही है और जिसे अभी तक मालूम नहीं है कि ये सब अच्छा ना होगा आपा। जाने हालात क्या सूरत इख्तियार कर जाए। इस मकान के खाली कमरों में फिर से जिंदगी लौट आएगी बानो, और साथ ही साथ उसको एहसास भी होगा कि किसी के इंतजार में दिन बिताना, किसी के तसव्वुर से हम कलाम रहना कितना कठिन काम है। लेकिन हुमैरा को कब तक ये मालूम ना होगा कि वो... बानो, आपा यकीन जानो,
मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये सब गलत मालूम हो रहा है। उसका यहाँ आना मुनासिब नहीं है, ऐसी सूरत में जबकि वो मौजूद है बानू। इसीलिए हुमैरा ने लिखा है कि तुम खुद स्टेशन पर मुझे लेने आना। और अब उसके बजाय तुम जाओगी, तुम उसे लेने जाओगी। हाँ, मगर स्टेशन पर उसे न पाकर क्या ख्याल करेगी? उसको ये बताया जाएगा कि वो कहीं चला गया है और उसकी जगह मैं उसके खैर मकदम को आई हूँ। उसके बाद फिर घर आने पर तब तो तुम्हें बताना होगा। यहाँ आ जाने के बाद हाँ, फिर मैं उसे बता दूंगी। तो फिर ये घर क्यों सजाया जा रहा है? ये गुलदस्ते, ये फूल, वो गमले। इसलिए कि घर में दाखिल होते ही उसको एकदम एहसास न हो सके। और फिर ये सब तो उसने खुद किया है बानो। उसे हुमैरा का इंतजार था। क्या बात है आया, तुम कुछ कहना चाह रही हो? क्या गाड़ी का वक्त हो गया? बग्गी तैयार है क्या? जी बीबी जी। और वो आ गए। वो कौन? भानु बीबी, वो देखिए, वो आ रहे हैं दोनों, शाहिद बीबी और शाहिद मियाँ। कौन? मेरे बच्चे शाहिद और शाहिद। अम्मी डार्लिंग, मेरे बच्चे जीती रहे। हाँ, कैसी है तू? और शाहिद बेटे? हेलो अम्मी। जीते रहो बेटा। अरे तुम लोग आज शाम कैसे आ गए? तुम्हें कल पहुंचना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम दोनों आ गए हो। बस अम्मी, हमने किसी तरह मैनेज कर लिया। पहुंचना तो कल ही था, आपको खत लिखने के बाद फौरन प्रोग्राम बदल गया। 2 घंटे के अंदर जस्ट इन 2 आवर्स हमने सब तैयारी कर ली। शाहिद भैया जरा सुस्ती से काम ले रहे थे। मैं सुस्ती से काम ले रहा था? अगर मैं तुम्हारी शॉपिंग न करता तो? दर्जी से तुम्हारे कपड़े मैं लाया, तुम्हारा पसंदीदा सेंट 5 दुकानों पर घूमने के बाद मिला, और वो नायलन स्कॉर्फ। मगर मेरी समझ में नहीं आता, इस दकियानूसी बस्ती में तुम इन सब चीजों का क्या करोगी? अम्मी डार्लिंग, मेरी अच्छी अम्मी, आप जरा देखिएगा मैं कितनी बहुत सी चीजें लाई हूँ। ऐसी कमाल की चीजें, सब फॉरेन मेड, जो यहाँ बस्ती में कभी किसी ने देखी तक ना हो। और आपके लिए जो जर्सी लाई हूँ, हाय अल्लाह, उसका कलर कितना प्यारा है ना शाहिद? और वो ब्रोच अम्मी, आप देखिए तो। शाहिद बेटी, तुम वो ओ खालाजान आदाब। आदाब खालाजान, माफ कीजिएगा, मैं कुछ ख्याल ही। चूंकि हम 1 साल के बाद आए हैं तो घर आने की खुशी में खालाजान हमें बहुत अफसोस हुआ। खालाजान, हम आपके लिए बेहद वरीड थे। भाई के यहाँ आने की खबर मिली थी तो खुशी हुई थी कि इन छुट्टियों के बहाने उनके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मगर और मैं भी देखना चाहती थी कि भाई में कितने चेंजेस हो गए हैं। जब इस बस्ती से गए थे तो मैं 10 ही साल की थी। कुदरत को यही मंजूर था। हमें वाकई बहुत दुख हुआ खालाजान। आपका गम हमारा गम है। गम और दुख की बातें न करो बच्चों। अच्छा बानो, मैं जरा देख लूं उसके कमरे की चीजें तरतीब से लगा दी हैं या नहीं। शमादान, बिस्तर वगैरह। बग्गी भी तैयार है, मुझे स्टेशन जाना है। अम्मी जान, यहाँ पहुँचने की खुशी में हमें कतन ख्याल न रहा कि इस घर में मौत हो चुकी है। तुम्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर तुमने अपनी खाला से माफी भी मांग ली। मेरे बच्चों, मेरे नजदीक आ जाओ। मैं तुम दोनों को बहुत करीब से देखना चाहती हूँ। शाहीन बीबी और शाहिद मियाँ तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। मेरे दोनों बच्चे कितने खूबरू हैं। हाँ, माशाल्लाह, नजरे बद दूर। और शाहीन बेटी तो अल्लाह रखे बिल्कुल जवान हो गई हैं। एक नजर देखने से तो कोई पहचान भी ना पाए कि ये वही है जो पिछले साल गई थी। बिल्कुल ही बदल गए दोनों। नहीं आया, ये न कहो, ये नहीं बदले, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहाँ से गए थे। मेरी बच्ची, शाहिद बेटे। अम्मी जान, खैर तो है, आप परेशान से क्यों हैं? कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ नहीं, बस मुझे जरा देखने दो करीब से। जी चाह रहा है टिक टिक्की बांधे तुम्हें देखती रहूं। तुम दोनों मेरी तरफ देखो। अम्मी डार्लिंग, भाई का इंतकाल कैसे हुआ?
लड़की? उनके मरने की वजह वो लड़की। बस बस नहीं, बस बेचारा बीमार हो गया, दफातन में और 2 रोज बीमार रहकर मर देखा शाहीन, मैंने तुमसे कहा था इट वाज़न्ट ट्रू। तुम खामखा, तुम्हारे जहन में तो सिवाय रोमांस की और कोई बात आती ही नहीं। उस लड़की के गम में मर गए, नॉनसेंस। गया। खुदा के लिए शाहिद बेटे, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी जान, आपको क्या बताऊं, आपकी बेटी तो सिवाय रूमानी नॉवल पढ़ने के और अंग्रेजी फिल्में देखने के और कुछ करती ही नहीं। उसके जहन में सिवाय इस किस्म की बातों के और कुछ नहीं समाता। मेरी बच्ची, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मी डार्लिंग, आप शाहिद भाई की बात का यकीन कर रही हैं? ये हर वक्त मुझे इसी तरह टीज करते यकीन न हो तो देख लीजिएगा, इसके सूटकेस से कम 20-25 नॉवल निकलेंगे। अच्छा प्लीज, मेरे जाती अफेयर्स में दखल ना दें आप। ये तुम दोनों झगड़ने क्यों लगे? अम्मी इन पर असर ही नहीं होता। मुझे तंग करके डांट खाने में ना मजा आता है। और अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स वाली बात बता दूं तो फिर, और वो रॉक एंड रोल, और मैं कहती हूँ नो मोर ऑफ दिस। और खुद जैसे कुछ करते ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी कॉकटेल पार्टीज की बात बता दूं तो? अल्लाह तेरी शान, कल की बात है, दोनों कैसे मासूम थे और अब। हाँ आया, वक्त के साथ बच्चा बढ़ता है, जवान होता है, फिर शहर की नई रोशनी और रस्म रवाज का असर। देखो ना मेरी बेटी को, बालों का जूड़ा किस सलीके से बनाया है। और हाँ, मेरी बेटी तो मुझसे भी कदमी लंबी हो गई है। देखो ना बेटी, मैं तुझे कैसी लग रही हूँ? वंडरफुल अम्मी, यू आर डार्लिंग। बहुत अच्छी सी मेरी अम्मी। मगर तुम मुझे यूं क्यों देख रही हो? कैसे अम्मी? कुछ अजीब तरीके से। और तुम भी शाहिद। कुछ नहीं अम्मी। आपका वहम है, वैसे आप खुद अजीब अंदाज से गुफ्तगू कर रही। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं हंस रहा हूँ। हंसने की बात थी, मगर आप कुछ अजीब सा लग रहा है। शाम सी हो गई है, कमरे में अंधेरा हो गया है। तुम दोनों साल बाद लौटे हो ना, जी भरकर देखने को जी चाह रहा है, मगर ये अंधेरा। बानो बीबी, मैं अभी लैंप रोशन किए देती नहीं, हूँ। चलो बच्चों यहाँ से चलें, घर चलें। काफी अंधेरा हो गया, रात होने को आई। अम्मी, वो कमरे में कैसी रोशनी है? कौन है वहाँ? काश तुम जान सको। क्या भाई उसी कमरे में मरे थे? इस घर में हम तुम सब कोई नहीं, सिर्फ वही है वही। क्या खाला जान भाई के लिए रोशनी रखते हैं जैसे वो आने वाले हों? आने वाले हो? वो गया कहाँ? वो तो वही है। बीबी कहती है वो उसे कहीं ना जाने देंगी, क्योंकि बच्चे जब माँ से दूर चले जाते हैं तो वो नहीं रहते। बेचारी खाला जान। ओह गॉड, दिस इज मैडनेस। बीबी कुलसूम उसकी इस तरह बातें करती हैं कि तुम वाकई उसे देख सकती हो। जब कभी मैं अकेली होती हूँ, मुझे खटका सा रहता है। मैं बार बार घूम कर देखती हूँ, यूं लगता है कि अभी कमरे से निकलेगा, टहलता हुआ बाग में चला जाएगा। और वो उसका कमरा जूं का तू रखने को कहती है। सुबह शाम का यही मामूल है। और उन्हें इंतजार रहता है कि वो किसी भी वक्त, किसी सुबह, किसी शाम आ जाए। तौबा। अम्मी, अम्मी डार्लिंग। शाहीन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, सच बता, तू मुझे वैसे ही चाहती है ना जैसे पहले चाहती थी? हाँ, हाँ अम्मी। चलो चलो, खुदा के लिए घर चलो, यहाँ से दूर चलो। आओ आओ, अंदर चली आओ हुमैरा। ये हमारा बैठने का कमरा है और उसके साथ वो उसका कमरा है। ये गुलदान देख रही हो तुम, ये उसके पसंदीदा फूल हैं। अभी जब तुम उसके कमरे में जाओगी तो देखोगी कि यही फूल उसने तुम्हारी तस्वीर के चारों तरफ सजा रखे हैं। ये सब उसने कल ही किया था। फूल? मेरी तस्वीर? मेरी तस्वीर के गिर्द वो फूल सजाकर खुद चला गया? तुम फिर बुरा मान रही हो हुमैरा। काश तुम जान सकती कि यहाँ न होना उसे किस कदर महंगा पड़ा है। मैं बेताब होकर उससे मिलने आई, उसने मेरा इंतजार तक न किया। उसे मेरी परवाह नहीं। नहीं हुमैरा, ये सब उसने तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जिंदा हूँ, मर तो न गई थी जो। मौत? ये तुमने क्यों कहा?
मरने की बात तुमने क्यों की हुमैरा? अगर वो मुझे जिंदा समझता तो मेरी तस्वीर पर ताजा फूल बखेर कर खुद ना चला जाता। इसका मतलब ये है कि मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। अगर मैं उसके लिए जिंदा होती तो वो मेरा इंतजार करता, लेकिन हुमैरा, वो कभी ऐसा ना करता, कभी ना करता। तो ऐसा करने में उसका कोई मकसद था? हाँ। बताइए, बताइए ना उसका क्या मकसद था। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए, बताइए ना। ऐसे करने में उसने मसलहत समझी। उसका मकसद था, यकीनन तुम्हें इल्म होना चाहिए। अगर मुझे उसके इरादों में दखल होता तो फिर बात ही क्या थी। नहीं, तुम गलत कह रही हो हुमैरा। तुम्हें उसके इरादों में बहुत दखल था, अब भी है। तुम उसका मकसूम बन चुकी हो। ऐसा होता, मगर ऐसा नहीं था। पिछले 7 बरस में खुद को फरेब देती रही हूँ, अब मुझे वो सब एक सुराग मालूम होता है। नहीं नहीं, ऐसा न कहो हुमैरा, तुम कुछ भी नहीं समझती। सुनो, मैं जानती हूँ तुम्हें उससे कितनी मोहब्बत है। उसने वापस आकर सब कुछ मुझे बता दिया। उसकी दलील में ये कहना ही काफी है कि वो मुझसे 7 बरस दूर रहा। ये तुम्हारी ही मोहब्बत थी कि जिसने उसे मुझसे इतनी दूर रखा, है ना? ये सच है ना? उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मैं उसके हर राज से वाकिफ हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। आप उसकी माँ हैं, मगर आपको उसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? क्या उसने आपको बताया कि वो यहाँ वापस क्यों आया? क्या तुम्ही ने उसे वापस आने पर मजबूर नहीं किया? हाँ, मैंने उसे मजबूर किया। मैंने उससे कहा कि वो वापस चला जाए, मगर ये सब उस वक्त हुआ जब मुझे उसकी कुर्बत से खौफ आने लगा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसकी कुर्बत से खौफ क्यों आने लगा? ये महसूसात की बात है। ये ठीक है कि मैंने उसे मोहब्बत दी, अमन बख्शा, अमन जो उसकी तस्कीन का बायस था, मगर रफ्ता रफ्ता वो अमन जो मैंने तख्लीक किया था उसे गिरा गुजरने लगा। उसने मेरे खुलूस से बेवफाई। नहीं, मेरा बेटा बेवफा नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा इल्जाम जज्बाती है हुमैरा। 7 बरस पहले मैंने एक बदहवास नौजवान को इंसानों के उस घने जंगल में मोहब्बत और शफकत की तलाश में पाया। मुझे उस पर तरस आया। मैंने उसकी रूह के जख्मों को अपने सीने की हरारत देकर मुंतमिल किया। उसे इस काबिल बनाया कि वो उस दुनिया में जो आपकी दुनिया से मुख्तलिफ है मर्दानावार हालात का मुकाबला करे। मगर जब वो इस काबिल हुआ तो तुम्हारी इन बातों में हिकारत का जज्बा कार फरमा है, लेकिन मैं जानती हूँ हुमैरा, यही मोहब्बत है। ये अजीब बात है, जिनसे हम नफरत करते हैं उन्हीं से हमें मोहब्बत भी होती है। मगर वो है कहाँ? मैं उसे लेने आई हूँ। क्या वो आपको बता कर नहीं गया? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चला गया। हुमैरा, तुम्हें दावा है कि तुमने उसे जिंदगी बख्शी, मगर मैंने उसे तख्लीक किया, खून पिलाकर बड़ा किया। वो मुझसे 7 बरस दूर रहा। मैंने उसे खो दिया, लेकिन फिर भी हर लम्हा मैं मुंतज़िर रही कि वो आ रहा है। हुमैरा, मैंने सब्र किया, तुम भी सब्र करना सीखो। तुम चंद दिन की जुदाई न बर्दाश्त कर सकी, और लिल्लाह मुझे बता दीजिए, इतना बता दीजिए कि वो फिर कहाँ है। मुझे मालूम होता तो जरूर बता सिर्फ देती। इतना बता दीजिए कि वो वापस आएगा कब? क्या मैं फिर उसे देख सकूंगी? हाँ हुमैरा, इस सवाल का जवाब मैं पूरी यकीन से दे सकती हूँ। हाँ, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। क्या मुअम्मा है? एक वक्त था जब उसने मुझसे जिंदगी का यकीन हासिल किया,
اور آج میں وہی یقین اس سے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ ماں کی بے حد محبت سے نکل کر گیا تھا، اسے مکمل انسان بننے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی، میں اس کا سہارا بنی، اور شاید اس نے مجھ میں آپ کی محبت کو پا لیا، وہ مطمئن ہو گیا، اور میں بھی اپنی اور اس کی رفاقت پر قناعت کر گئی، اور اسے وہ زندگی بخشتی رہی جو شاید صرف ایک ماں ہی کا حصہ ہوتی ہے، مگر پھر ہماری خاموش ساکت زندگی میں وہ ننھا سا نامعلوم لمحہ جانے کہاں سے آ گیا، جو اپنے چھوٹے سے وجود میں انگنت طوفان چھپائے ہوئے تھا۔ سب کچھ کیسے ہوا مجھے معلوم نہیں، مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، مجھے اس کا احساس ہے، مجھے اس سے خوف آنے لگا، اور وہ بھی مجھے بوجھ سمجھنے لگا۔ حمیرہ، اور پھر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا، لیکن اب تو مجھے خود اپنا وجود ہی نامکمل معلوم ہونے لگا ہے، اور اسی لیے میں یہاں آئی ہوں تاکہ اپنی تکمیل کر سکوں۔ مجھے اس کی تلاش ہے، خدا را بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارے دل میں ہے حمیرہ، اسے وہیں تلاش کرو۔ مگر اسے معلوم تو ہو کہ میں واقعی یہاں آئی ہوں اس کی تلاش میں۔ میں عورت ہوں، زندہ ہوں، مجھے اس کا سہارا چاہیے، پہاڑ سے زندگی گزارنے میں اس کا سہارا ضروری ہے۔ وہ ہے کہاں بتائیے، للہ بتا دیجیے، اندازہ نہیں بتا دیجیے۔ نہیں حمیرہ، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ دیکھو تم سفر سے تھکی ہو بیٹا، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ آرام؟ ہاں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آؤ میں تمہیں کمرے میں پہنچا دوں، سو جاؤ، سونے سے طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ نہیں، میں سو نہیں سکتی، نیند کہاں آئے گی، میں اس کا انتظار کروں گی، مجھے یوں سکون نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سکھاؤں گی سکون کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے جب کوئی دور ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو سکون حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ گزشتہ 7 برس جب وہ یہاں سے چلا گیا تھا، دور، بہت دور، تمہارے پاس، تو میں اسے اپنے بیٹے کو بہت قریب محسوس کرتی تھی، اس کے سنہری بالوں کو چھو سکتی تھی، اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرے دل میں تھا، تم بھی ایسے ہی سمجھو میرا۔ اور پھر دیکھو یہ رات اور اس کے بعد آنے والی ہر رات کس سکون سے گزرتی ہے۔ آؤ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کا کمرہ دکھا دوں۔ یہ دیکھو، یہ اس کا کمرہ ہے۔ کیا وہ یہاں سوتا تھا؟ ہاں، یہاں، یہ اس کا بستر ہے، اور یہ وہ میز ہے جہاں بیٹھ کر وہ تمہیں خط لکھتا تھا۔ اور یہاں آؤ حمیرہ، اس کھڑکی سے باہر جھانکو۔ چاندنی رات میں روش کے ساتھ رکھے ہوئے یہ گملے کتنے بھلے لگتے ہیں۔ یہ اس کی پسند ہے، اور وہ سامنے وہاں رات کی رانی کے اس جھنڈ کے پاس بیٹھے اس نے کل رات بہت دیر تک تمہاری باتیں کی، اپنی محبت کی کہانی سنائی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا۔ اور پھر وہ چلا گیا؟ کل رات اس نے مجھ سے کیا کیا نہ کہا، ہزاروں باتیں، تمہاری باتیں، باتیں ہی باتیں۔ مگر اب تمہیں انتظار کرنا ہے اس کا۔ وہ ضرور آئے گا نا؟
हाँ, वो जरूर आएगा, तुम यकीन रखो। अब आओ, तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं, तुम सो जाओ। एक बात कहूँ अगर? हाँ हाँ, कहो। अगर आप इजाजत दें, ऐसा हो सकता है कि... कहो, रुक क्यों गई हो मेरा? मैं इस बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। तुम उसके बिस्तर में सोना चाहती हो? उसके कमरे में रात गुजारना चाहती हो? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अब वो मेरे साथ है, मैं तन्हा नहीं हूँ, वो मेरे साथ साथ है। यही तो था, यही तो था। अब तुमने महसूस कर लिया, तुमने उस राज को पा लिया, तुमने उसे पा लिया हो मेरा। तुम यहीं रहो, उसके कमरे में बेटा, उसके बिस्तर पर सो जाओ। वो तुम्हारे साथ है, अब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सच है, वो मेरे करीब है, बहुत करीब। वो तुम्हारे दिल में मौजूद है हुमैरा, तुम्हारे दिल में। अच्छा, अब तुम बिस्तर पर लेट जाओ, सोने की कोशिश करो बेटा। मैं जाती हूँ। शब बखैर। शब बखैर हुमैरा। वो जिंदा रहेगा। आप कौन हैं? मुझे बेगम से मिलना है। मैं हुमैरा की बहन हूँ, समीरा। बेटी तुम बैठो। हुमैरा कहाँ है? सो रही हैं। सो रही है? ताज्जुब है, वो सो किस तरह सकती है? सफर की थकी हुई थी, फिर रात गए तक कुलसूम बीबी और वो बातें करती रही, इसीलिए शायद देर तक सोती रहे। वो कहाँ सो रही है? मुझे फौरन उसके पास ले चलो। आप यहाँ ठहरे, मैं कुलसूम बीबी को इत्तला करती हूँ। मगर ये सब आखिर किस तरह मुमकिन है? क्या शाम से अब तक उसे मालूम ना हुआ कि वो मर चुका है? वो कल आई थी ना? जी हाँ, कल शाम आई थी। कुलसूम बीबी खुद उन्हें स्टेशन लेने गई थी। तुमने उन्हें वापस आते देखा था? क्या वो रो रही थी? नहीं तो, दोनों बड़े इत्मीनान से बातें करती रहीं। शायद बेगम ने शाम मुझसे जिक्र करना मुनासिब न समझा हो, सोचा हो सुबह ही अंदोना खबर सुनाई जाए। उन्होंने, कुलसूम बीबी ने तो अब तक किसी से भी अपनी जुबान से उसकी मौत का जिक्र नहीं किया, और न वो खुद रोई, न ही शोक मनाया। आप ये फूल, ये गुलदस्ते देख रही हैं ना, कल शाम कुलसूम बीबी ने खुद सजाए थे। बेगम ने बेटे की मौत का शोक नहीं मनाया, और आज उसे मरे हुए 11 रोज हो चुके हैं। क्यों? बस ऐसी ही सुबह थी, 11 दिन पहले, जब वो बीबी आ रही हैं। आया, जरा आहिस्ता आहिस्ता बातें करो, वो सो रही है। तुम हुमैरा की बहन हो? जी, आप तसव्वुर नहीं कर सकती मैं किस कदर परेशान हूँ। वो मुझसे बगैर कहे चली आई है। मुझे यकीन था वो यहाँ आई होगी। स्टेशन पर आकर जब मैंने आपके बेटे के मुतालिक पूछा तो बस्ती के एक आदमी ने मुझे बताया, और ये अंदोना खबर सुनकर मेरी परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। क्या हुमैरा को अभी तक नहीं मालूम? जरा आहिस्ता बोलो, उसे अभी तक मालूम नहीं। मुझे उसके पास फौरन पहुंचा रही है। उसे जगा दूंगी, मुझे ले चलिए, मैं उसे फौरन बता दूं, वरना... नहीं, ऐसा न करो, मैं ऐसा न करने दूंगी। लेकिन क्यों नहीं? आप अंदाजा नहीं कर सकती, मैं अपनी बहन की वजह से बेहद परेशान हूँ। तुम परेशान न हो, फिक्र की कोई बात नहीं। ये आप मुझसे कह रही हैं, इसकी बहन एक ऐसे नौजवान से जो... तुम जरा सब्र से काम लो, मैं तुमको सब समझाए देती हूँ। सब? मुझे सब कैसे आ सकता है जब तक मैं अपनी बहन की सूरत न देख लूं, उसे वापस घर न ले जाऊं? खुदा के लिए जरा आहिस्ता बोलो, वो साथी के कमरे में सो रही है। साथ के कमरे में? मैं जाकर अभी उसे जगा... नहीं, ऐसा न करना,
یہ سب اس کے لیے بہت ہولناک ہوگا. کل شام جب وہ آئی تو اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ یہ خبر اسے سنائی جاتی. لیکن آپ کو مجھے اطلاع دینا چاہیے تھی. اس سے پہلے کہ وہ یہاں آنے کا فیصلہ کرتی مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ مر چکا ہے. ہاں شاید مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ کرنے میں میرا کوئی قصور نہ تھا. ایک انجانی قوت، ایک انجانے جذبے نے یہ سب مجھ سے کرایا. اس کا ادھورا خط مکمل کرتے وقت بھی میں یہ نہ جانتی تھی کہ سب میں آخر کیوں کر رہی ہوں. ادھورا خط؟ تو کیا اس کا وہ خط جو حمیرہ کو ملا اس کی موت کے بعد آپ نے؟ ہاں، اور یہ اچھا ہی ہوا. اوہ میرے خدا! تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ حمیرہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ایک مردہ انسان سے محبت کرتی ہے؟ تم اسے مردہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کے لیے وہ زندہ ہے. وہ اس کا انتظار کر رہی ہے. وہ کب تک اس کا انتظار کرتی رہے گی؟ ایک نہ ایک دن اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اب کبھی نہ آئے گا. وہ ضرور آئے گا، ضرور واپس آئے گا. میں نے اسے اس بات کا یقین دلایا ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ یقین زندہ رہا تو حمیرہ کے لیے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ اپنے خیالوں سے اسے زندگی بخشتی رہے گی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر چارہ نہیں. اپنی بہن کی خاطر تم کو بھی اسے یہ یقین دلانا ہے کہ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا. اوہ میرے خدایا، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے. وہ آ رہی ہے، حمیرہ آ رہی ہے. میری بات یاد رکھنا. ارے سمیرہ، تم کب آئی؟ کیسے؟ کیا بات ہے؟ تم اس طرح میری طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری بہن حمیرہ. کیا ہوا سمیرہ؟ بات کیا ہے؟ تم اس قدر پریشان ہو اور آپ؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں حمیرہ. آپ کو چھپا رہی ہے. کیا بات ہے سمیرہ؟ بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ میری بہن حمیرہ. تو کیا؟ نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں. مگر خدا کے لیے مجھے بتائیے، کیا وہ مر چکا ہے؟ کیا وہ؟ آج اس بات کو کئی روز ہو چکے ہیں میری بہن. کئی روز ہو چکے ہیں، اور آپ نے مجھے، اوہ آپ یہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ آخر کیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ تو کیا وہ اسی کمرے میں، اسی بستر پر جس پر میں رات سوئی تھی، بلکہ اس بستر پر اس نے آخری سانسیں لی تھی؟ تبھی تو رات میں نے خواب دیکھا جیسے وہ مر چکا ہے. اور مگر آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میرا اس پر حق تھا، بہت حق تھا. وہ مر چکا ہے اور اس کے متعلق ایسی باتیں ہوتی رہی جیسے وہ زندہ ہوا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. میں اسے دیکھ سکتی ہوں اور وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے. اب مجھے یاد آیا، جب میں اس سے جدا ہو رہی تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب وحشت تھی، ایک اجنبیت تھی. غالباً موت اسے مجھ سے جدا کر رہی تھی. اب میں سمجھی وہ موت کی پرچھائیاں تھی، اور اب وہ سچ مچ مر چکا ہے. نہیں، ہاں، مگر اب کیا؟ اب میں اسے مرتا ہوا دیکھ رہی ہوں. وہ مر رہا ہے، میرا بیٹا وہ مر رہا ہے. آپ
कैसी बातें कर रही हैं? उसने कहा था वो अब मर रहा है, अब मैं देख सकती हूँ वो दम तोड़ रहा है। उसकी आंखें पथरा गई, उसके चेहरे पर मौत की जर्दी फैल गई। मैं मौत की ठिठुर महसूस कर रही हूँ। वो मर रहा है, मेरा लाल, मेरा बच्चा। आप क्या कह रही हैं? आपको क्या हो रहा है? मेरे लाल, मेरे बच्चे, तुम चले गए इस तरह, और मैं तुम्हें जिंदगी का इल्जाम देती रही, मैं तुम्हें जिंदा समझती रही। तुम्हारे सुनहरी बाल, तुम्हारी चमकदार आंखें, वो खो गई मेरे लाल। वो आंखें जो अब कभी न मुस्कुराएंगी। मेरे लाल, तुम चले गए और फिर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अब मैं तुम्हें कभी न देख सकूंगी। ये दीवानगी है। तो मुझे इस घर से वहशत हो रही है। ओह मेरा, चलो यहाँ से। क्या है? जिंदगी, मौत, जिंदगी। मेरे लाल, तू कहाँ है? हाय मौत, मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? जिंदगी, मौत एक मानगी का वक्फा है। वो यहाँ है, आपका बेटा। वो मुझ में है, वो मुझ में है। मेरे दिल में है, वो मेरे जिस्म में सांस ले रहा है। वो मुझ में मौजूद है, वो यहाँ है अम्मी। मेरी बच्ची, तो क्या तुम? हाँ मेरा, ये तुम क्या कह रही हो मेरा? चलो यहाँ से चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं किस तरह वापस जा सकती हूँ? अब जबकि वो वापस आने वाला है, मैं यहाँ रहूंगी और उसका इंतजार करूंगी।